Assalamualaikum. My name is Salam Dharejo and I am working in a development sector. Currently, I am working as a country director for Pakistan in Terrorism Germany, a German child rights organization that works almost in 35 countries across the globe. And on the same designation, I have been working since last 9-10 years. So my development sector career has been continued during last it's comprised of almost 2 decades. So today I would like to share my academic credentials, my professional achievements, the successes, the distinctions that I have received during my professional career of 2 decades. The purpose of sharing my successes, my distinctions and achievement is not to impress you but टू इंस्पायर यू. मैं समझता हूँ कि नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मसला होता है वो अपनी प्रोफेशनल कैरियर सिलेक्शन में होता है. बाद औक़ात उनको एजुकेशन सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है और ये मसला ओवरऑल मसला है, एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें नौजवानों का कसूर नहीं भी है. इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे जैसे एरियाज़ में, हमारे जैसे मुल्कों में इस किस्म की कैरियर काउंसलिंग के सेंटर्स नहीं है जहाँ पर जो नौजवान हैं वो कुछ सीख पाएँ, वो अपने एकेडमिक परसूट के लिए प्लानिंग कर पाएँ, अपने कैरियर सिलेक्शन के लिए मंसूबाबंदी कर पाएँ. तो नतीजन होता क्या है कि बहुत सारे नौजवान अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस जस्तजू में गुजार लेते हैं कि किस जॉब में कहाँ अकोमोडेट हों, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, किस सब्जेक्ट की मार्केट वैल्यू है, कहाँ मुझे जॉब मिलेगी, मुझे करना क्या है. मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम अपना गोल सेटिंग नहीं करते, हम अपनी प्लानिंग नहीं करते, हम अपनी आइडेंटिफाई नहीं करते कि व्हाट एक्चुअली द पोटेंशियल आई हैव एंड व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू do in my future which keeps me happy, which keeps me which inspire me to work hard. तो नतीजे के तौर पे सारी ज़िंदगी एक मुश्किल सूरत हाल ये रहती है कि नौजवान जॉब करते रहते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, चौथी जॉब और इस तरह से एक स्विचिंग प्रोसेस होता है. अनफिनिश्ड ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं रहती. तो ज़रूरत इस बात की है कि हम पहले दिन से अपनी प्लानिंग करें और ये कोई मुश्किल मसला नहीं. फॉर एग्जाम्पल टुडे आई वुड लाइक टू शेयर my life experiences that maybe help you in selection of your career, in selection of your academic study, in setting out your future goals. I would like to share my distinctions just to briefly to keep you abreast that what I have achieved during 20 years of my career. I'm an associate member of the Center for the Study on Global Human Movement, Cambridge University. I'm the fellow of Asian Human Rights Commission, Hong Kong. I'm the fellow of International Visitors Leadership Program. I'm the fellow of Salzburg Global Seminar, and I am the fellow of Asia Peace Innovator Forum. These are the sum of my, the distinctions that I have received on the basis of my work that I have done for the promotion of human rights in the country, for the raising voice for the labor right, working and writing on the issues related to the children, to the minority, to the poor, for the women. And this is the work I have been doing throughout my career. Besides working in the development sector, I have been associated with the journalism, and since last 15 years I have been consistently contributing on write-ups, social stories and investigative reports on the issues of human rights, on the labor, raising voice for the children, the minority and the women, and that is my core interest to write about. The journalism has ever been remained my passion, and I truly believe that once you really work hard, it pays off. And I am the luckiest freelance journalist in Pakistan who has been honored with national and international award. I'm the only Pakistani journalist who has received 3 times Developing Asia Journalism Award. Asian Bank Institute awarded me these awards in Tokyo, Japan 3 times, and I have an honor to receive the prestigious National Journalism Award that is called Happiness Award
and I received this award from the then President Asif Ali Zardari in President House, Islamabad. So journalism has ever been my passion, and I really love to write. I have never thought about to join journalism as a job, and because I never tried to have a job in the journalism, in the print media, in the electronic media, because it is my passion and I love to keep it as a passion. ये सारी जो अचीवमेंट्स मैंने आपको बताई, दैट इज़ नॉट बिकॉज आई बिलोंग टू सम प्रिविलेज क्लास. I'm not educated in English medium schools. I'm simply a rural man. I have spent almost half of my life in rural areas, in a village, in a remote village of district Sangar, which was lacking almost every modern facility. There was no electricity, there was no road, there was no telephone, there was no hospital, there was no gas connection, there was no even school. मुझे याद है कि I used to walk for almost 5 kilometers a day to attend my school in primary schools, and I walked for 5 years. I completed my matriculation from Government High School Chhol, that was situated almost 7 kilometers away from my village, and I used to travel by bus every day 15 kilometers a day. And I have the degree of intermediate. I received degree of intermediate from the Shahadadpur College, and it was situated almost 30 kilometers away. And every day I had to travel 60 kilometers in a public transport. Then I moved to Hyderabad and started my study in the masters in international relation, and then goes on. मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने बताया कि आई डोंट बिलोंग टू द प्रिविलेज. आई वॉज इन क्लास 8 जब मेरे घर में बिजली का बल्ब लगा था. आई वॉज इन क्लास 10th, मैट्रिक में था तब मेरे घर में टेलीविजन आया. सो यू कैन इमेजिन कि आई हैव अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड फ्रॉम वेयर आई started my walk to my professional and academic careers, and what right now I am this way. It has taken a long way to reach on this destination. मैं आपको बताता चलूँ, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम सिंधु यूनिवर्सिटी, तो इस मास्टर्स करने के पीछे भी एक रीज़न था. इंटरेस्टिंगली आई वुड लाइक टू शेयर दैट व्हाई select the study international relation. That is a catch point, and that will definitely inspire you all. And I hope that everybody should look in this catch, the incident, the turning points which really bring a change in your life, in your thoughts, in your planning. मैं क्लास 8 में था, मैंने एक किताब पढ़ी थी अराउंड द वर्ल्ड, that was written in Sindhi by अल्ताफ शेख. अल्ताफ शेख is a travelogue writer, और वो किताब उसने तब लिखी थी जब वो मैरीन इंजीनियर था और दुनिया घूमता रहता था. तो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग बुक. मैंने बताया कि 13-14 साल की एज होगी गालबन मेरी, जो मैंने एक किताब पढ़ी थी, और उस किताब ने मेरी थॉट प्रोसेस इतना मुतासिर किया कि उस किताब ने मुझे एक नई जुस्तजू दी, एक तजस्सुस दिया कि आई वुड लाइक टू सी ऑल द वर्ल्ड दैट आई हैव रीड अबाउट. वेरी दिलचस्प किताब थी अल्ताफ शेख की, जिसमें वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते थे, उनके बारे में, वो उनके कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में लिखते थे. तो उस किताब ने, उस बुक ने मुझे बहुत बड़ा इम्प्रेस किया, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी इस तरह से दुनिया को घूमूं. आई मस्ट ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड. ये वो ख्वाहिश थी जो मेरे दिल में थी, और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये बहुत देर से आया हुआ कि इस बुक ने मुझे इंस्पायर किया था कि मैं अपनी पूरी जो प्रोफेशनल और एजुकेशनल परसूट रहे हैं, उसमें इस किताब का बहुत बड़ा रोल है. तो मैं आपको बता रहा था कि जब मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था और मेरी सिलेक्शन इंटरनेशनल रिलेशन में हुई थी, तो उसके पीछे जो मेन केच था वो यही था कि मैं मास्टर्स करने के बाद किसी डिप्लोमेट्स में या किसी एम्बेसी में अप्लाई करूँगा, देन आई वुड avail this opportunity to roam around the world, and that was the only catch. उस टाइम पे बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, वो इंटरनेशनल रिलेशन को एज ए सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करते थे क्योंकि वो उनको कैरियर में सपोर्ट नहीं कर सकते. लेकिन मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये था कि ये मुझे उस डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा जिसकी मुझे ख्वाहिश है, जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरी इंटरेस्ट है. जब मैं पढ़ रहा था तो पता चला कि दिस डिग्री विल नॉट हेल्प मी
in achieving the target that I am thinking about. तो उसी टाइम पे ड्यूरिंग माई मास्टर्स डिग्री बहुत सारे और स्टूडेंट्स के साथ जो अपनी कैरियर सेटिंग की प्लानिंग करते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा कैरियर जंप होता है या ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट का एक शॉर्टकट होता है, वो होती है CSS। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं या जो चाह रहे होते हैं कि वो फ्यूचर में कोई जॉब करें, कोई अचीवमेंट हासिल करें, तो दे ट्राई टू अटेम्प्ट CSS एग्जामिनेशन एंड मैं भी उनमें शामिल हूँ। ड्यूरिंग माई CSS प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन, सबसे बड़ी जो बात ये थी कि आई केम टू नो दैट एक्चुअली CSS अटेम्प्ट या CSS की तैयारी या CSS के एग्जाम्स इट सेल्फ इज अ गैम्बल, इट्स अ गेम ऑफ 3 आवर। इफ़ यू प्लेड वेल यू आर पास, इफ़ यू कुड नॉट डिड वेल, अगर आप 3 घंटे की गेम अच्छी नहीं खेली, यू आर आउट ऑफ द गेम। तो ये वो फियर होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट भी होते हैं जब वो अपनी CSS क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो फिर उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और वो इट इज़ समहाउ अ बिग शॉक वंस यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। यू वांट टू बिकम ए सिविल सुपीरियर, यू वांट टू ज्वाइन द सिविल सुपीरियर सर्विसेज, और आपके जहन में होता है कि आप कमीशन्ड ऑफिसर होंगे। और ड्यूरिंग माई CSS एग्जामिनेशन मेरा ये एक पूरा प्लान था कि इफ़ आई एम सक्सेसफुल इन पासिंग द एग्ज़ाम और अच्छी मार्क्स से हो जाएगा और मुझे कोई ऑप्शन मिलता है, तो आई विल ऑप्ट फॉर द फॉरेन ऑफिसेस। और वो फॉरेन ऑफिसेस की जॉब में ना तो पैसा है ना पावर है, लेकिन वो फॉरेन ऑफिसेस में मेरा ड्रीम था कि आई विल अगेन गो अब्रॉड, रोम अराउंड द वर्ल्ड, एंजॉय द लाइफ, एंड दैट वाज द पैकेज, दैट वाज माय पर्पस। और इसी पर्पस को सामने रखते हुए आई ट्राइड to appear in the exam, and I tried really very hard. I prepared myself for the examination. I failed in the second and the last attempt. That was the last attempt because of my age. जिस तरह से मैंने बताया कि ये 3 घंटे की गेम है जिसमें अगर आप पास हो गए तो यू आर ओके, अदर इफ़ यू आर आउट ऑफ द गेम देयर इज नो वे। तो मैंने ये तहैया किया हुआ था कि इन केस मैं अगर CSS क्वालिफाई नहीं कर पाता हूँ तो देयर इज नो मोर गवर्नमेंट जॉब। आई विल नॉट अप्लाई फॉर एनी competitive examination, I will not apply for the government job, rather I would prefer to, or other sector was the development sector. Let me to be very honest with के जिस दौर में मैं अपनी डेवलपमेंट सेक्टर को अपना कैरियर सेलेक्ट कर रहा था, उस टाइम पे मेरा ना तो कोई दोस्त था इस सेक्टर में, ना मेरा कोई रिश्तेदार था, ना ही मुझे कोई इतनी ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। एक केज था मेरे लिए कि NGOs अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अगेन आई गो अब्रॉड, आई रोम अराउंड द वर्ल्ड, आई वुड हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू participate in the conferences, in the seminars take place around the world. I can have even a scholarship to study abroad. तो that was actually the catch. लेकिन जो at the back जो interest थी, जो objective था, जो goal था, वो वही था कि I would go for the roam around the world. Interestingly, and that was a very humble start. I remember it is almost 2001। मेरी CSS की रिज़ल्ट गालबन 5 मई को आई थी और 7 मई को मैं मुख्तलिफ एड्रेसेस NGOs की लेके और आई नॉक द डोर ऑफ द NGOs में NGO में एक में गया, दूसरी में गया, तीसरी में गया। मैं उनको ये बताना चाह रहा था कि आई एम the fresh graduate, or recently I have been appeared in the CSS exams, so now I am failed and joined this sector. तो मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे कोई स्पेस ऐसा चाहिए जहाँ पर मैं बैठूँ और मैं लर्न करूँ कि what actually the NGOs are doing. और इंटरेस्टिंगली ऑब्वियसली दैट वाज यही मैसेज होता था कि वी हैव अ सिंपैथी विथ यू, लेकिन वी डोंट हैव ए स्पेस, वी डोंट हैव जॉब, एंड तो इस तरह से एक से दूसरी से तीसरी से कि मैं दफातर में गया और मैंने अपनी कहानी उनको सुनाने की कोशिश की, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली आई एम नॉट आस्किंग फॉर यू फॉर द जॉब और एनी पैकेज, आई जस्ट नीड स्पेस टू सिट देयर to learn that what actually is required for the NGO work. I remember at that time a person, Comrade Ramzan Memon, he was very nice to me. जब मैं गालबन वो एक्शन एड में काम करते थे तो मैं उनके ऑफिस में गया, he listened me carefully और उसने कहा कि सलाम, I'm sorry, I can't offer you any space in my office because we don't have a space, we don't have relevant opportunity for you to learn here. So I would rather suggest you कि आप, मेरी वाइफ है एक इंस्टीट्यूशन में काम करती हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशनल रिसर्च पाइलर, मैं उनको फ़ोन भी करता हूँ और आपको एड्रेस देता हूँ और यू गो टू हर, मीट विथ हर
and share all the story. I hope कि she will accommodate you. And then I moved to Gulshan Memar. मैं मैडम शाइना से मिला. She was such a nice, gentle lady. She really received me with very respect. वो बड़ी शफीक खातून थी. उसने क्लियरली मुझे कहा कि बेटा मेरे पास जॉब तो नहीं है, आई एम सॉरी, आई कांट ऑफर यू एनी पैकेज और सैलरी, लेकिन आप अगर जो सीखना चाह रहे हैं तो मैं आपको स्पेस दे सकती हूँ. यू कम, यू सिट देयर एंड आई होप यू विल लर्न and help us. And that was the humble beginning. जब मैं उनके साथ यस किया, I was agreed on her condition. तो जो पहला टास्क मुझे दिया गया था वो थी न्यूज़ क्लिपिंग्स. मैडम ने कहा कि हम चूँकि लेबर राइट्स पे काम करते हैं तो हमारा ज़्यादातर काम हमारी जो इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में बहुत सारे अखबारात आती हैं. नाउ इट इज़ योर ड्यूटी कि आप अखबार पढ़ें, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, उनमें से जो भी लेबर रिलेटेड न्यूज़ हैं उनको आप रखें अपने पास, क्लिपिंग करें, उस पेपर पे पेस्टिंग करें. एंड दैट वाज द वर्क आई डिड ऑलमोस्ट फॉर 6 months विदाउट मनी, विदाउट जॉब. और मैं ये करता रहता था. इसी दरमियान आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर द मैगजीन्स. उस टाइम पे जो पायलर के मैगजीन निकलते थे उसमें लिखना शुरू किया, और वो पहला पोटेंशियल्स मेरा राइटिंग की सूरत में आया था. और उसके बाद पायलर में जिन लोगों ने मुझे देखा, मेरी राइटिंग्स पढ़ी, तो उसने कहा कि सलाम आप कुछ अच्छा भी लिख सकते हो. और तो ग्रेजुअली एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी आई थी पायलर में, तो आई अप्लाइड सो फार एंड आई वाज सिलेक्टेड. सो दैट वाज माय फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट इन द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च, पायलर. एंड आई वर्कड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट फॉर 5 years. वही ऑर्गेनाइजेशन थी, जब मेरा ख्याल है कि ये 2005 का टाइम है, जब एक डच ट्रेड यूनियन की फेलोशिप आई थी. और एक्चुअली द फेलोशिप वाज के एनी young person who is working in a labor sector, labor rights organization, and is interested to continue job working for the poor and the vulnerable sections. और उसके लिए जो लवाजमात होती हैं, मास्टर्स और क्रेडेंशियल्स. So I qualified this, the fellowship, and I went. That was actually in the Institute of Social Studies, Holland. It was a postgraduate diploma, and interestingly, that was the first my international exposure for the study, and that was my academic trip. वो post graduation diploma actually split था. Theoretical learning हमें हॉलैंड में करनी थी, द हेग सिटी में, और जो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन या प्रैक्टिस देखनी थी हमें वो इंडिया में देखनी. और इंडिया के 2 शहर थे, अहमदाबाद. तो आई स्टडीड इन हॉलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़. वहाँ पर हम थ्योरी कंप्लीट की. उसके बाद मैं और मेरे साथ ऑलमोस्ट कोई 22 स्टूडेंट्स थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. वी ट्रेवल्ड फ्रॉम एम्स्टर्डम टू अहमदाबाद, द फर्स्ट आवर डेस्टिनेशन वेयर सेवा ऑर्गेनाइजेशन वाज वर्किंग, सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन. वहाँ पर हमें ये देखना था कि जो ख़वातीन हैं जो घरों में काम करती हैं, या लो लेबर, लो पेड डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनको किस तरह से एनजीओ के तौर पे सेवा द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है. और सेवा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स, and they have almost 7 lakh members throughout the country. तो वहाँ पर हमने ये सीखा था. उसके बाद our next destination was Kerala, and it is very interesting state, and I still believe that is one of my best learning experience that I learned in Institute of Development Studies. एक इदारा था, एक इंस्टीट्यूशन था जहाँ पर हम गए थे, और वहाँ हमें देखना ये थे कि how this small state, the Kerala, the poor state, is one of the development model for the world. मुझे याद है कि उस टाइम पे out of 28 states of India, the Kerala was standing at 24th poorest state of the country. But at the same time, the Kerala was retaining highest HDI, Human Development Index. There was almost 100% literacy. Every household was having road connection, gas connection, grid connected. और हर 3 किलोमीटर के बाद एक हॉस्पिटल थी which used to offer not only the health services but all the diagnostic facility. तो ये एक डेवलपमेंट का मॉडल था कि किस तरह से केरला ने दुनिया में तरक्की की है, अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना हाई रखा है. वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी. तो मैं जो बात कर रहा था कि ये मेरी वहाँ से फर्स्ट एकेडमिक परसूट था जो इंटरनेशनल में गया. आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़. देन आई मूव्ड बैक टू पाकिस्तान. आई वर्क फॉर
sometime with Pilar, then I moved to Spark, another child right organization, and ultimately I joined Terrorism Germany in 2011. For the Terrorism Germany advertisement आई थी पाकिस्तानी अखबारात में कि they were looking for the country director, and I applied for this position, and out of almost 1200 applications I was shortlisted and ultimately offered the job in this organization which I'm still working with. So very interesting, very inspiring, everything, every achievements. इस पूरे अरसे के दौरान आई एम लकी दैट के इस सेक्टर में मैंने जो अपना ड्रीम देखा था, जो मेरी हैप्पीनेस का जो अचीवमेंट्स का जो इंस्पिरेशन थी, वो ये थी कि आई वुड हैव अपॉर्चुनिटी टू रोम अराउंड द वर्ल्ड, एंड आई एम लकी इनफ दैट I have traveled more than 50 times abroad or across the Europe, Asia, East Asia, America, and ये वही कैच था, ये वही हैप्पीनेस थी जिसने मुझे इस सेक्टर में लाया था। और मैंने जिस तरह से बताया कि इस पूरे डेवलपमेंट, पूरे कैरियर को सिलेक्शन करने में मुझे हेल्प की थी, एक किताब ने थी, वो थी अराउंड द वर्ल्ड। तो इस पूरे तजर्बात और डिस्टिंक्शंस शेयर करने का मेरा पर्पस ये था कि आप जो अभी नौजवान हैं, आपकी फ्यूचर कैरियर और अपने एकेडमिक प्लानिंग के फेज़ में होंगे, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू, आई ऑलवेज शेयर माई एक्सपीरियंसेस। तो मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। मैं समझता हूँ कि अपने गोल सेटिंग करने में बहुत आम सी, कॉमन सी परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आई ऑलवेज फील कि यू जस्ट फॉलो योर इंस्टिंक्ट। आप ये देखने की कोशिश करें कि आपको क्या अच्छा लगता है, व्हाट एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी। आप चाहते क्या हैं? पावर चाह रहे हैं, आप पैसा चाह रहे हैं, आप सोशल डेवलपमेंट चाह रहे हैं, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, हज़ारों लाखों फील्ड्स हैं जो कुछ आप करना चाह रहे हैं, लेकिन उन सब के पीछे जो बुनियादी होती है वो होती है। मैं समझता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल तब हो सकते हैं वंस यू फॉलो योर इंस्टिंक्ट। मेरा ख्याल है कि आपने 3 इडियट्स फिल्म ज़रूर देखी होगी, और उसमें जो बॉटम लाइन मैसेज है वो यही है कि यू फॉलो योर इंस्टिंक्ट, उसमें आप कामयाब हो, एक्सेल करें। और फिर जब आप अपनी आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपनी इंटरेस्ट, अपनी हैप्पीनेस, अपने ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हाउ टू अचीव इट, एंड दैट इज़ नॉट अ बिग डील। एंड उसके लिए कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं है जो आप अप्लाई करें। You just set your destination, and Paulo Coelho कहते हैं कि when you really want to live out your dream, the whole universe conspires you in favor, and you can see that how I achieved my objective and how the universe conspires in your favor. I hope my career, my profile, my talk would inspire you and will help all those who are somehow discouraged, disappointed, feeling not happy. They will recollect their energy, they will start planning and go for the dream. I wish you all have a good dream and have a good future. Thank you very much.